Good evening, you're watching To The Point. I'm Preeti Chaudhary. It'll be 30 days tomorrow for what? Well, for the farmers' agitation, since groups of farmers, and there are lakhs of them out there, are pretty much sitting on the doorstep of the national capital, blocking various highways with their demands. Well, 29 days is today, and it took 29 days for the Congress and Rahul Gandhi from protesting virtually to actually take the streets down, take the protest down to the streets. So this is what happened today. Rahul Gandhi led some leaders of the Congress party to the Rashtrapati Bhavan with a memorandum to the president, which was signed by 2 crore farmers and citizens of this country supporting the farmers. In midst of all of this, of course, the police stepped in, and the likes of Priyanka Gandhi with some other Congress leaders were also detained because they were not allowed to move forward. In all of this, the Rahul Gandhi on one end says that there is no democracy in this country. The BJP has responded back saying, you can't teach us about democracy. What happened when emergency, where your own government was there, which was the darkest hour for democracy. So don't have that democracy debate with us. In midst of it all, what is collateral? Who is collateral? The farmers. After 29 days of an agitation, the Gandhis finally took their virtual support to the farmers to the streets of the national capital. Congress leaders, led by Rahul Gandhi, marched to the Rashtrapati Bhavan to the president, armed with a letter signed by 2 crore signatories supporting the demands of farmers. The march was stopped by the Delhi police, and Priyanka Gandhi, along with other leaders, was taken into preventive custody. Rahul Gandhi, also Adhir Ranjan Chaudhary and Ghulam Nabi Azad were allowed to meet the president. इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं, वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे। शायद वो इतिहास नहीं पढ़े हैं। भारत के इतिहास में काले अक्षर में 1974 का इमरजेंसी है, राहुल गांधी को पढ़ लेना। While the agitation by farmers continues, and now it's mind games and optics that will define on who breaks first. The politics on the sidelines expected. However, quick look in the past, and it's quite easy to gauge that all political parties are none the better when it comes to duplicity over the farmer protest. The Congress, in its own manifesto in 2019, had promised to bring similar amendments in the APMCs. NCP Sharad Pawar, who was Union Minister in UPA, had written to all chief ministers of states seeking private sector participation in market infrastructure. For the Bharatiya Janata Party, in 2011, as Gujarat Chief Minister and head of a committee on consumer affairs, Mr. Narendra Modi had submitted a report on the MSP, seeking no transaction below MSP and recommending that MSP law be enforced. In midst of this political slugfest, who is collateral? We leave it for our viewers to decide. Bureau Report, India Today. Would that really require much thinking on our viewers' accounts? Well, we let it be there. But what is the Congress saying? The Congress is saying, we've got to do this. We are the opposition. There is a massive protest which is now teetering at being a movement on the doorsteps of the national capital. We have to take the voice of the farmers to this government, which is not listening. This is what the Congress is saying. Congress is saying this is our duty. We are doing our duty. The BJP is saying you're making a quick buck of the farm protest. You're trying to instigate farmers. So which one is it? Let's cut across to our panelists this evening. I have Nasir Hussain, Rajya Sabha MP, Congress. I'm joined by Gopal Krishna Agarwal, Bharatiya Janata Party spokesperson. And I have Master Shivraj Singh, Bharatiya Kisan Union President. And, if our political guests would wait just about a minute, I want to cut across to Master Shivraj Singh. Master Shivraj ji, अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपके कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस गोली चला रही है, सही है? जी धन्यवाद आपके लिए। आई एम नेशनल प्रेसिडेंट बीकेयू लोक शक्ति।
हमारा कंधा तो इतना मजबूत है। हमारे कंधे पर बैठ करके तो भाजपा की सरकार चला रही है, लेकिन मैं देश की सरकार को धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि हमारा देश के संविधान की जो रचना हुई है वो ये हुई है, जिसने जनरल कास्ट में जन्म लिया है उसको कोई भी सुविधा, सरकारी सुविधा लेने का अधिकार नहीं है। उसी तर्ज पर उत्तम खेती, मध्यम बांध, लिखित चाकरी, भीख विधान, देश कृषि प्रधान है, किसान देवता है, किसान अन्नदाता है, तो किसान को लेने का तो देश का अधिकार ही, देने का अधिकार है, सबका पेट भरने का अधिकार है। जो किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठा हुआ ये पागल है, बेवकूफ है, क्योंकि तो कृषि प्रधान देश में जन्म लिया है, इसको अन्नदाता कहा गया है, इसको किसान देवता कहा गया है। जब जनरल कास्ट को कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलती आरक्षण में इस देश में, तो किसानों को भी नहीं दे सकती सरकार उसी तर्ज पर, क्योंकि किसान देवता है, किसान अन्नदाता है, किसान ने कृषि प्रधान देश में जन्म लिया है। किसान के घर में जन्म लेना और जनरल कास्ट में जन्म लेना पाप के बराबर हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ। मास्टर शिवराज जी, क्या आपको कांग्रेस पार्टी बहका रही है या ऑपोजिशन बहका रहा है क्या? क्योंकि बोलिए। सुनो, हमको भाजपा बहका रही है, हमको मोदी जी बहका रहे हैं, हमको कृषि मंत्री जी बहका रहे हैं, हमको अमित शाह जी बहका रहे हैं, हमको रक्षा मंत्री जी बहका रहे हैं। और आज इन्होंने देश को दो भागों में बांट दिया किसानों को, विरोधी किसान और सहयोगी किसान। जैसे हिंदू मुस्लिम में बांटा था ना, उसी तर्ज में विरोधी किसान और सहयोगी किसान में बांटा। ऐसा जो सत्ताधारी पार्टी है, हमने इनको खुल के इतना समर्थन दिया, तो ऐसा कौन सा विधायक सांसद है जिनके पास अपने क्षेत्र में 1500 ट्रैक्टर या किसान ना हो, वो हर जा करके उनमें तेल डलवा करके किसान संगठन का नाम दे करके किसान बिल का समर्थन करवा रहे हैं। ये मैं ये कह रहा हूँ, जो किसान सब बिल का समर्थन कर रहे हैं वो हमारी तरह खुले आसमान में आकर के धरने पे बैठे ना, एक दिन भाजपाओं से खर्चा लेकर के और एक दिन अपना फोटो खिंचवा करके घर चले गए, इससे समर्थन हो गया बिल का? अरे जैसे वो बिल का समर्थन करना चाहते हो, जो जयचंद है, जो गद्दार है, जो विभीषण है, जो कुलघाती है, वो आगे खुले आसमान में बैठ के समर्थन करना इस बिल का। पता चलेगा खुले आसमान के नीचे। हमारे प्रकाश भाई अब तक शहीद हो लिए, कभी डीपी सिंह को भी अहंकार हुआ था, मंडल का मंडल लिखा थे, हजारों युवाओं ने दिल्ली में आत्मदाह किया था। उसी तर्ज पर जब हजारों किसान धरने पर नहीं मर लेगा जी, भाजपा की आंख खुलने वाली नहीं है। चलिए, एक मास्टर शिवराज जी हमारे साथ रहिए। आई वांट टू कट अक्रॉस टू मिस्टर अग्रवाल. Mr. Gopal Agarwal, I really don't want to say anything. The questions have been posed by Master Shivraj. He's not a politician. He represents the Bharatiya Kisan Union. Sir, would you like to answer? No, I just want to say one thing is that हिंदी में बोल दीजिएगा अग्रवाल साहब। हाँ, अच्छा ठीक है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जब सरकार पूरी तरह से किसानों से चर्चा करने को तैयार है और अगर किसान समझते हैं कि इन बिलों में कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने वाला, लेकिन हमारा पूर्ण विश्वास है और हम लोगों ने बहुत किसानों से बात की है, यह जो तीनों कानून है यह किसानों के हित के लिए है। उनके बहुत सारी समस्याओं को, सारी समस्याओं का समाधान तो नहीं है, बहुत सारी समस्याओं के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। और जो कांग्रेस और जो अलग अलग वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग इसके खिलाफ हैं, वह अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जब भी कोई बड़ा रिफॉर्म आता है तो उसमें कोई एक छोटा वर्ग है जिसके हितों को शुरू में छोटे समय में उसका नुकसान होता है, लेकिन लंबे समय में लार्जर इंटरेस्ट में वह उसका फायदा होता है पूरे किसान क्षेत्र को। तो बिना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के, बिना वैकल्पिक बाजार व्यवस्था के किसानों का हित नहीं होने वाला। उनको बाजारी व्यवस्था से उनको बेटर प्राइस भी मिलेगा, वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट भी होगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बगैर किसान के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो यह इन्हें समझना पड़ेगा कि यह बिल है, अगर सरकार भी तो कुछ सोच समझ के करती है, हमारा और क्या फायदा है इसमें। अगर हम मानते हैं कि 57% 60% देश के जनसंख्या किसानों की है, तो उनके हित को बगैर साधे हम कैसे सत्ता में रहेंगे, हम कैसे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। तो हमें समझ में पता है कि ज्यादातर किसानों के हित में, कुछ लोगों को इसकी आशंका है, उसको हम दूर करने के लिए तैयार है। ओके, गोपाल अग्रवाल जी, ये कहेंगे कि हम कानून खत्म कर देंगे तो फिर यह बात ठीक नहीं है।
just stay with me. मेरे साथ बने रहिए. I want to go across to Mr. Hussain. Mr. Hussain, you know, ultimately, what is the charge laid at your doorstep? You're being called opportunistic by the government. You're being called trying to make a quick buck at the back of an agitation. Because they say you yourself, your own manifesto in 2019 had very similar APMC acts which you wanted yourself to put in force. Your own party ally, then Agriculture Minister, Mr. Sharad Pawar, when he was Agriculture Minister, wanted privatization of agriculture. So why this duplicity and right now hypocrisy? प्रीति, मैं भी हिंदी में बात करूंगा ताकि जो है और भी पैनलिस्ट को थोड़ा समझ में आ जाए। दो तीन चीज साफ है। देखिए, हम कोई एजिटेशन को हाईजैक नहीं कर रहे हैं। हम किसी किसानों के कंधों पे खड़े होके हम अपनी जो है राजनीतिक गोली नहीं चला रहे हैं। एकदम साफ है। जिस दिन ये बिल्स पेश हुए थे लोकसभा में और राज्यसभा में, हम लोगों ने साफ तौर से इसके खिलाफ खड़े हुए थे। 8 जो राज्यसभा में एमपी सस्पेंड हुए थे, उसमें 3 कांग्रेस पार्टीज के एमपी सस्पेंड हुए थे। और डे 1 से हम लोगों ने कहा कि ये बिल्स किसान विरोधी है, किसान के हित में नहीं है। ये सिर्फ जो है क्रोनी कैपिटलिस्ट, जो मोदी जी के और भाजपा के चंद जो क्रोनी कैपिटलिस्ट फ्रेंड्स हैं, उनको जो है ये मदद करने वाली बिल्स हैं। डे 1 से हम कह रहे हैं। एजिटेशन तो बहुत बाद में स्टार्ट हुआ, एजिटेशन बाद में स्टार्ट हुआ, राज्यसभा में ही हंगामा हुआ और धरना हिंदुस्तान की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पहली बार जो है पार्लियामेंट के अंदर धरना हुआ है। हम लोगों ने वहां पे पूरा एक दिन भर रात भर जो मालूम वहां पे बाहर बैठे थे। उसके बाद में ही 8 दिन का पार्लियामेंट सेशन रहते हुए भी सरकार को ये लगा कि ये मुद्दे पे बहुत ज्यादा तहलका मच जाएगा हिंदुस्तान भर में। वहां पे 8 जो सस्पेंडेड एमपीस हैं और अपोजिशन पार्टीज के एमपी धरना पे पार्लियामेंट के अंदर बैठे, इसीलिए उन्होंने सेशन को एडजर्न किया था। तो ये हम अभी आंदोलन के बीच में जा रहे हैं, उनका हाईजैक कर रहे हैं, उनके साथ में बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं है। डे 1 से हम खिलाफ हैं। ये किसान विरोधी बिल्स हैं, हम इनका विरोध करते रहेंगे। और दूसरी बात जो है, हुसैन साहब, क्या 2019 में आपका मैनिफेस्टो में सिमिलर लॉ नहीं था? सर, क्या शरद पवार जी ने, जब वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे आप ही की गवर्नमेंट में, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन के लिए नहीं पिच किया था? प्रीति जी, आप हमारे मैनिफेस्टो के सेक्शन 7 के पॉइंट नंबर 10 की एक बात कर रहे हैं। उस सेक्शन में 22 पॉइंट है। हम लोगों ने ये बोला कि ये बिल्कुल रिपील करके सर, मैं आपके पास आती हूं, इनको बोलने दीजिए। छोटे टाउन्स और बड़े गांव के पास हम मार्केट लेके जाएंगे। हजारों एपीएमसी मार्केट क्रिएट करेंगे। हम मार्केट को किसान के खेती के पास में करीब ले जाएंगे। ये हम लोगों ने उसमें किया है। ये भारतीय जनता पार्टी और कुछ सेक्शंस ऑफ मीडिया ये किसानों को हमारे मैनिफेस्टो को लेके जो है कंफ्यूज करना बंद करे। पूरा मैनिफेस्टो आपके स्क्रीन पे आप चिपका दें, उसमें एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम किसान के हित में खड़े हुए हैं, किसी भी हालत में पीछे हटने वाले नहीं हैं। और किसान के, और आज नहीं है, आज राहुल गांधी जी आज नहीं जागे हैं। पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में उन्होंने बड़े बड़े किसान रैली, जैसे ही वो बिल पे हंगामा हुआ, उसके 8-10 दिन बाद में ही तीनों स्टेट्स में बड़े बड़े रैली किए हैं। और देश भर में जो किसान ने कॉल दिया है, हम लोगों ने ओपनली उनके कॉल पे भारत भर में पार्टिसिपेट किए हैं। और जगह जगह हम लोगों ने हुसैन साहब जी, पंजाब में जी राहुल गांधी ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी, आप सही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, मोदी कुछ भी कहे, उनके पक्ष में हम खड़े रहेंगे। जी, गोपाल अग्रवाल जी, आप आना चाह रहे थे, पर मैं ये सवाल आपसे भी कहूंगी कि ये जो किसान जब पॉलिटिक्स में पिसता है ना, क्योंकि 2011 में क्या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, कंज्यूमर पैनल के हेड थे, उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि आप एमएसपी को लॉ में बदलिए। ये तो उन्होंने ही बोला है ना, प्रधानमंत्री जी ने 2011 में यही बोला था। अब क्या बदल गया? नहीं, देखिए, पहली बात यह है कि 2011 की बात आप करते हैं, ये एमएस स्वामीनाथन कमेटी 2006 में आई थी। उसने कहा था कि एमएसपी को 150 गुना कर दीजिए कॉस्ट से, और 2010 तक और 13 तक कुछ नहीं हुआ। हमने 2016 में 150 गुना किया है। दूसरी बात
यह जो है, ये जो बार बार कांग्रेस कहती है, इन्होंने तो रिपील की बात की है। इंग्लिश का इनका वर्ड आप मैनिफेस्टो देख लीजिए, क्लॉज 11 कहता है कि हम एपीएमसी को रिपील कर देंगे। तो इतना स्पष्ट इन्होंने रिपीलमेंट की बात की है। उसका अगला पॉइंट भी पढ़ दीजिए। और तीसरी बात, नहीं, मेक योर पॉइंट। उसका अगला पॉइंट भी पढ़ दीजिए, नहीं, बता एक दीजिए मिनट एक मिनट शिराज जी, पूरी बात करें। दूसरी बात, मैं एक महत्वपूर्ण बात क्या कहना चाहता हूँ। अभी इन्होंने कहा, हुसैन साहब ने, कि हमें हजारों मंडियों की जरूरत है। हम भी तो कह रहे हैं, पूरे देश में अभी 7,000 मंडियां हैं, 40,000 मंडियों की आवश्यकता है टोटल, यानी 33,000 मंडियां और चाहिए। कांग्रेस पूरे 70 साल में 7,000 मंडियां बना चुकी पाई है, और आप कह रहे हैं कि 33,000 मंडियां ये अभी बना देंगे। नहीं बना सकते। इन्होंने 70 साल में 7,000 बनाई है, अगले 70 साल में जी चलिए नहीं खत्म कर रहे। तो इसलिए प्राइवेट मंडियों की बहुत आवश्यकता है, उसके बगैर किसानों को वैकल्पिक बाजार नहीं मिलेगा। चलिए किसान से ही पूछ लेते हैं, पक्का मजबूत मानते हैं। अग्रवाल साहब, किसान से ही पूछ लेते हैं। बहुत टाइम से मास्टर शिवराज जी अपनी हाँ जी, आप कंप्लीट करिए। चलिए कंप्लीट करिए। हाँ, और मैं किसानों से पूछना चाहता हूं कि उनको वैकल्पिक व्यवस्था की ऑप्शन है ना, वो चाहे तो मंडियों में 7,000 मंडियां हम नहीं खत्म कर रहे, लिखवा लो, स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो। चलिए ओके। और बाकी अगर उनको उन्हीं मंडियों में बेचना है तो उसी में बेचिए। हम कहाँ स्टैम्प पेपर पर अग्रवाल साहब वो मांग रहे हैं कि एमएसपी को लॉ में बदल दीजिए, वो स्टैम्प पेपर की बात कर रहे हैं। चलिए ये छोड़िए, पर एपीएमसी की बात कर रहा हूं मैं। चलिए ओके। आई वांट मास्टर शिवराज जी, मुझे मालूम है आप अंदर आना चाह रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, हमारे साथ इतना सौतेला व्यवहार न करें। इस बिल का नाम होना चाहिए था कारपोरेट घराना कृषि जगत में, क्योंकि इन्होंने जो बिल बनाया, कारपोरेट घराना कृषि जगत पे अपना कब्जा करना चाहता है। कैसे, वो मैं बताता हूँ। एक तो क्रिया विक्रिया क्या रेशो से रहेगा। हो सकता है किसान तो इस बिल से जिंदा रहा है, लेकिन जो हमारे भैया भतीजे चाचा ताऊ जो शहर में रह रहे हैं, वो महंगाई की मार में मारे जाएंगे। कैसे, ABCD सारी कंपनियों ने सारा माल ठोक कर लिया। एक ने अनाज कर लिया, एक ने दलहन कर लिया, एक ने तिलहन कर लिया, इस तरीका से एक ने सब्जी कर लिया, और सारा भंडारण करके, सुन लो भाई, सुन लो, मैं बीच में नहीं बोला, बोलिए मेरी बात सुन लो। तो वो सारा भंडारण करके किस रेशो से बेचेंगे। ऐसे नहीं कि मक्का 8 रुपया किलो बिक रही है और पॉपकॉर्न 200 रुपए का 50 ग्राम बिक रहा है, वही चिप्स और सारी चीजों की हालत है। दूसरी बात, इन्होंने जो कहा किसान कोर्ट नहीं जा सकता, सिर्फ जिलाधिकारी कोर्ट तक रहेगा। किसान की ताकत भंडारण उसे तो बदल दिया ना। इन्होंने कहा कहीं भी बेचो, तो हम रेल में किसान, 2 हेक्टेयर का किसान, बुग्गी झोटा वाला किसान बम्बई जाके नहीं बेचेगा। ये सारे जो कानून इसमें बनाए गए, ये कारपोरेट घराने के इसमें बनाए गए। इसलिए इस बिल का नाम होना चाहिए कारपोरेट जगत बिल। ये कृषि बिल के नाम से तो बेकार है। दूसरी बात, ये जो मेरे साथी कह रहे हैं हम दूसरा ऑफर ला रहे हैं आपके लिए, छोटी मछली, बड़ी मछली और फिर मगरमच्छ। हमको छोटी मछली ने खाया, बड़ी मछली ने खाया, मगरमच्छ खाएंगे। हम ये कह रहे हैं जो MSP है, देश की सरकार नहीं खरीद सकती सारा गल्ला, तो जो भी छोटी मछली हो, बड़ी मछली हो या मगरमच्छ हो, जो हमारी खाल नोचते रहते हैं, वो MSP से 10% जोड़ के ऊपर खरीद करें, और उसी रेशो से माल को जोड़ा करके ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम जोड़ा 10 रुपए की चीज अधिकतम 15 रुपए में वापिस मार्केट में बेचे। सस्ता से बेचने का वो कारपोरेट जगत की संपा से बेचेगा भंडारण करके। हमारे भाई जो शहर में रह रहे हैं उनकी क्या हालत होगी। ये तो कारपोरेट जगत का बिल है जी। मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए मास्टर शिवराज जी क्विक कमेंट्स देंगे। हुसैन साहब, आपने जो राहुल गांधी ने डेमोक्रेसी की बात की, हुसैन साहब, डू यू थिंक इट्स अ लिटिल रिच कमिंग फ्रॉम द कांग्रेस, keeping mind what the history of this country has been, which was reminded? What has happened? Sir, the emergency. But Preeti Chaudhary, one should understand that if at all there is a democratic environment in this country, it is only because the Congress and its leaders tried to establish democracy in this country. If you look at all the countries which got independence around 40s and 50s in the world, it is only India where democratic institutions has been built up. All these democratic institutions and democracy is being thwarted and is being thwarted by the present regime. Everyone knows that what is happening in this country for the past 6 months, for the past 6 years.
the students can't speak, the journalists can't speak, the media is tight-lipped, everywhere, everything agenda is So, there. well, all we hope is that they are opposition not party can't tight-lipped. speak, We try and say it for what it is. Okay. We try and say it for what it is, and for us there is no emergency. It is what it is, which is we follow the truth and we report that. Appreciate you all for joining us. Thank you. With that, it's a quick break. Up next is Rahul Kamal. Do stay with us. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.